Hello student. So we are here for our next class of class 8, chapter 1, part 3. The name of chapter is as usual networking concept. In the previous classes we have studied about computer networking and its need, different types of computer networking, LAN, PAN, MAN, and WAN. Local area network, personal area network, metropolitan area network, and wide area network, which is also known as internet. Then we have studied about network topologies, bus topology, ring topology, star topology, and mesh topology. Bus topology was like a backbone and system are connected. If this main wire is crashed, then all the system will crash out. This was the architecture of bus topology. Then ring topology. Ring topology is in the form of circle and their system were connected to each other. But if the wire is crashed in one way, then all the system will be affected. Or if one system is crashed, then all the system is affected. Then architecture of star topology. Star topology have one central hub and all the devices are connected to it. It is in the form of a star diagram. All the devices here connected. If we send the message or data, then all the data will travel through hub and then passes to the destination. This is if central hub is crashed, then only the other system will crash. Otherwise, if one system is crashed, it will move according to their effectiveness. And the last topology was mesh topology, and this is the best and expensive topology because in this all the systems are connected to each other. If there is any breakage in one wire, then it will travel from this. If this wire is broken, then it will travel through this. This is the best topology, but it is very expensive as wire is used to connect it. Then we have studied about protocol. Protocol are the set of rules or guidelines according to which the network work. Means if we not follow the guideline of this protocol, then the network will malfunction. Malfunction means वो अच्छे से काम नहीं करेगा. So these are the things which we have studied in the last class. Now today we will study about transmission media. In transmission media, there are two types of transmission media, that is wired transmission media and wireless transmission media.
मतलब वायर के थ्रू हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और वायरलेस मतलब बिना वायर के थ्रू हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल मींस कि दो केबल होते हैं वो एक दूसरे में ट्विस्टेड होते हैं। जैसे हम दो कलर का वायर जब लेते हैं कोई बल्ब होल्डर लगाने के लिए, तो वो जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर होते हैं। देन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कौन से होते हैं, केबल वो डिस्क वाला देखा है जिसमें ऊपर ब्लैक कलर का जैकेट होता है, देन उसके अंदर नेट मैश होता है, देन उसके अंदर एक प्लास्टिक का कवरिंग होता है और देन वहां पे कॉपर वायर होता है। ये क्या है, कोएक्सियल केबल। देन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, ये ग्लास टाइप का मटेरियल होता है ऑप्टिकल फाइबर। अगर एग्जांपल इसका देखना है तो जब मेले में एक ऐसा फ्लावर पॉट मिलता है जिसमें लाइट जलती है और उसमें ऐसे पतला पतला रेस टाइप का निकलता है और उसके टिप पर लाइट शो करता है, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का एक एग्जांपल। और ये सबसे फास्ट ट्रांसमिशन मीडिया है, क्यों, क्योंकि ये लाइटिंग की स्पीड से वर्क करता है। देन वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को कौन से, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। ये क्या है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। Then we will study about network devices. कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हैं, NIC, NIC, which we also call network interface। ये क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देन हब एंड स्विच। हब अभी बताया था, वो सेंट्रल में लगता है रूट डाइवर्ट करने के लिए। एंड स्विच, स्विच क्या होता है, इसमें जैसे एक कनेक्शन आया इंटरनेट का, बट हमें 10 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करनी है, तो जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी डिवाइस होगी, स्विच। इसमें कई सारे स्लॉट होते हैं और एक एक सिस्टम को एक एक स्लॉट हम प्रोवाइड कर देंगे, तो ये क्या करेगा, उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। देन नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी हम किससे करते हैं, वायरस, बॉम्ब्स एंड Trojan horse. These are all the malicious coding program which store our data and send it to their server. मतलब ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हमारे डेटा को, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, उसको चुराते हैं और अपने सर्वर पर उसको सेंड करते हैं। देन कंप्यूटर सिक्योरिटी। अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पहला क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम, जो हमारे इस वायरस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, फाइंड आउट करेगा और बाहर निकाल देगा। और फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में गेट होता है, गेट के अंदर तभी कोई आ सकता है जब उसके पास आईडी हो, तो इसी तरह फायरवॉल में भी होता है। उसमें क्या होता है, वो एक वॉल टाइप का बना देता है, केवल वही एंटर कर पाता है जिसके पास वैलिड
डॉक्यूमेंट मीन्स वेरिएबल यूजर नेम और पासवर्ड होता है, या यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, वही हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया। Transmission media is the object used at the time of transfer of data. ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे कब यूज करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के टाइम। टू ट्रांसफर डेटा एंड टू फॉर्म अ नेटवर्क, कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड टू वन अनदर। डेटा ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर क्या होना चाहिए? एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। To connection might be in the form of a wire or a cable. The connection हो सकता है कि किसी फॉर्म में हो, चाहे वायर या फिर वायरलेस। Wire transmission media. Now we will learn about different types of cable used in data transmission. अब हम कुछ ऐसे केबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करता है डेटा ट्रांसमिशन में। पहला कौन सा है? ट्विस्टेड पेयर केबल। This type of cable is made up of two wires twisted together. ये दो वायर से बनते हैं जो आपस में ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, आपस में उसको जोड़ दिए जाते हैं। In order to form a cable, to reduce the disturbance and noise in signal, the wire are insulated. वायर में प्लास्टिक कवरिंग इसलिए की जाती है ताकि वो एक दूसरे से डेटा को नॉइजी ना करे, मतलब कि उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। यूज ऑफ दिस केबल इज मोस्टली इन पेयर ऑफ टू और मोर और इन अ सिंगल केबल। देयर आर टू वैरायटी ऑफ दिस केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दो तरह के ट्विस्टेड पेयर होते हैं, एक शील्डेड मतलब इस पे प्लास्टिक कवरिंग होती है, और एक अनट्विस्टेड जिसमें प्लास्टिक कवरिंग नहीं होती है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आर आल्सो नोन एज UTP. इट इज मोस्ट कॉमन केबल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं? बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, इनको क्या और क्या बोलते हैं? UTP, अनट्विस्टेड unshielded twisted pair. Then the next is coaxial cable. Coaxial cable is an electrical cable which has the presence of conductor in the center. Means कि बीच में उसके क्या होता है? कंडक्टर होता है। जैसे अभी पता है कि बीच में कॉपर वायर होता है और उसके बाद प्लास्टिक कोटिंग और उसके ऊपर नेट मैश और उसके ऊपर लेदर प्लास्टिक जैकेट, ये क्या है? कोएक्सियल केबल। The conductor is insulated and its insulation is again surrounded by conductive layer known as a sleeve, which also has the thin insulation layer on the outside. मतलब कि फिर वो पहले कंडक्टर लगा, then प्लास्टिक जैकेट, फिर नेट मैश, then फिर प्लास्टिक जैकेट। Next is optical fiber cable. The optical fiber cable type has a glass core in its center. Glass core मतलब जो फाइबर होता है वो ग्लास टाइप का होता है और वो एकदम कोर में होता है, मींस एकदम बीच में। Its center that is surrounded by a protective material consisting of several layers. और उसमें कई सारे लेयर्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। The transmission of data in this cable take place in the form of light and not in electrical signal, which eliminate the problem of electric interference. मतलब वो ऐसा होता है कि जिसमें डेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है, वो ट्रेवल किससे करता है? लाइट के थ्रू, in the form of light.
ऑप्टिकल फाइबर केबल इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल, एज कंपेयर टू ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल केबल. The data transfer speed is very high in this type of cable. और डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये लाइट के फॉर्म में वहां ट्रांसमिशन करता है. कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. Wireless transmission media is a system of data transmission in which wires are not required to transfer data. Wireless transmission media क्या है? ये फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें केबल रिक्वायर नहीं होता है. We will now learn how it works. अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है. तो पहला कौन सा है? इंफ्रारेड. रिमोट यूज करते हैं. रिमोट में क्या यूज होता है? इंफ्रारेड. कभी भी रिमोट को अपने मोबाइल कैमरे के आगे लाना और कोई भी बटन प्रेस करना, उसमें देखना आगे एलईडी जो लगा रहता है वो रेड कलर का बहुत लाइट जलता है, तो वो क्या है? इंफ्रारेड. और इंफ्रारेड रिसीवर कहाँ होता है? हमारे टीवी के कैबिनेट में. Infrared are basically waves that are used to transmit data in a very short distance. इंफ्रारेड क्या होता है? ये ट्रांसमिट करता है डेटा बहुत छोटे डिस्टेंस पे, मतलब बहुत दूर अगर इसको यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा. Also there can be no physical barrier like wall for this to work. अगर उसके सामने अगर कोई भी चीज हम रख देंगे, कोई पेपर रख दिए, कोई हाथ रख दिया या फिर किसी वॉल के पीछे से उसको ऑपरेट करना है तो वो वहां से काम नहीं करेगा. The best example of infrared is communication between a TV and a remote control. टीवी और रिमोट कंट्रोल के बीच में जो डेटा ट्रैवल करता है वो किसके थ्रू करता है? इंफ्रारेड के थ्रू. Wireless mouse and keyboard also use infrared wave to communicate to the computer. Wireless mouse और कीबोर्ड वो भी इंफ्रारेड के थ्रू ऑपरेट करते हैं. Microwave transmission. These waves can travel only in one direction. Microwave transmission क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता है, मतलब या तो वो रिसीव करेगा या फिर सेंड करेगा. Microwave are used for communication with the satellite or for terrestrial communication. Satellite जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है? माइक्रोवेव से. The communication can only be in the line of sight which is wide. Tower with antenna have to be in direct sight of another. मीन्स कि जब हमारा बड़े-बड़े एंटीना लगते हैं, बड़े-बड़े टावर्स लगते हैं, तो उसका एंटीना क्या होता है? एक दूसरे एंटीना की तरफ डायरेक्ट होता है या फिर सैटेलाइट की तरफ डायरेक्ट होता है. These antenna are placed at a high rise building or structure so that no obstruction stop the transmission to transmit information. मतलब जो हमारा टावर लगता है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे लगता है ताकि अगल बगल की कोई बिल्डिंग उसका वहां पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके या उसके डेटा को कहीं से भी बाउंड ना कर सके. To transmit information from Earth based station to satellite, we use microwaves. मतलब अर्थ बेस सैटेलाइट से, अर्थ बेस ऑफिस से या कोई डिवाइस से हम सैटेलाइट पे कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. As they can only penetrate through Earth atmosphere. वो केवल अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू हो जा सकता है. Then next, radio wave transmission. Microwave can travel only in one direction, but radio wave can travel in all directions. Microwave एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, but radio wave कई सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. From where they are source, जहाँ से वो सोर्स किया गया उसके हर डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा.
The transmitter and receiver are not required to be carefully aligned at an omnidirectional. मतलब जो ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो भेजने वाला और उसको पाने वाला, जिसको मिल रहा है वो डेटा, वो ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में वो खड़े हैं या फिर उनका एंटीना एक ही डायरेक्शन में, वो कहीं पे भी रहे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उनका एंटीना रहे, बट रेडियो वेव के थ्रू वो उनको डेटा मिल जाएगा. It is easy to generate these waves and they can easily pass through building, which is why these are widely used for both indoor and outdoor communication. ये ऐसा है जिसमें कोई भी चीज फाउंडेशन नहीं करती, चाहे हम हाथ लगाएं या उसको कवर कर दें, फिर भी वो जो रिसीवर है उसके पास डेटा पहुंच जाएगा. These waves are however subject to disturbance from motor or other electrical equipment at all frequency. बस इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो मोटर्स होती है या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होती है, जो डिवाइसेस होती है, उसी के थ्रू इसमें डिस्टरबेंस होता है, अदरवाइज इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर सकता. Wi-Fi and Bluetooth use radio waves to set up network. Wi-Fi और Bluetooth रेडियो वेव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए. Bluetooth technology. Bluetooth is used for transfer of data over short range of maximum 30 feet approximate. मतलब कि हम केवल 30 फीट दूर रहेंगे, अगर बहुत ज्यादा हुआ तभी हमारा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा. It uses lower power and has a medium transfer speed. बहुत कम पावर यूज करता है और इसका ट्रांसफर स्पीड, जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है, वो बहुत स्लो या मीडियम उसको कह सकते हैं, एवरेज स्पीड होती है. Then Wi-Fi technology. Wi-Fi technology also use radio wave for transmission and reception of data, but require more energy and can almost cover a range of 300 feet approximately. ये 300 फीट को ये कवर करता है और इसमें क्या होता है, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो ब्लूटूथ से ज्यादा होती है और ये रेडियो वेव को ही यूज करता है. They also have a fast rate of transmission. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. Then next topic is network device. नेटवर्क डिवाइस में पहला कौन सा डिवाइस, NIC, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, also known as NIC. This is hardware device which is connected to the computer to enable communication over network. ये ऐसी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती है ताकि हमारा कंप्यूटर कहाँ कनेक्ट हो, नेटवर्क में. अगर ये डिवाइस नहीं है तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा. NIC has a room on it which has a unique address, also known as MAC address or media access control. इसमें यूनिक एड्रेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे नेटवर्क में वो कनेक्ट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. दिस इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क. और इससे हमारा कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब पहचान, उसकी एक अलग पहचान बनती है. क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे NIC का एक ही नंबर होगा तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किससे उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमें सारे NIC उस नंबर पे चेक करने पड़ेंगे. इसलिए सारे कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस दिया गया है कि अगर उससे प्रॉब्लम होती है, उसे मैसेज सेंड करना हुआ तो उस MAC एड्रेस को वो फॉलो करेगा. The next is modem. Modem is modulator demodulator, an electric device used to convert digital signal of a computer into analog and so as to enable their transmission over a telephone line. Modem का क्या काम है? डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना. When they reach the desired destination, the modem convert analog signal back to digital. जब यहाँ से जाता है
तो क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जब रिसीवर के पास जाता है तो एनालॉग को क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तब फिर कंप्यूटर को शो करता है, मतलब कंप्यूटर पे शो करता है। मॉडम आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। मॉडम कंप्यूटर और इंटरनेट को कनेक्ट करता है। दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन लाइन। कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में उसका कनेक्शन होता है। नेक्स्ट इज हब। It is basically a device that is used to connect all computer in a network. ये ऐसा डिवाइस है जिसमें सारे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट किए जाते हैं। Hub receive the data from the computer, sending it and send the packet to all the computer connected to the network. अगर हब के पास कोई भी मैसेज आता है तो ये क्या करता है, जितनी भी उसके कंप्यूटर्स अटैच हैं उन सब को वो मैसेज भेज देता है और केवल वही कंप्यूटर रिसीव करता है जिसका वो एड्रेस वहां पे मैच करता है। The computer is individually responsible in the network to determine which packet to accept and reject. जो कंप्यूटर होते हैं वो उस चीज के रिस्पांसिबल होते हैं कि अगर हब ने डेटा पैकेट सेंड किया है तो क्या करना है, किसको रिसीव करना है और किसको रिजेक्ट करना है, वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। Then switch. A switch is also used to connect the device to a network. वो क्या करता है, डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। स्विच इज डिफरेंट फ्रॉम द हब। वो डिफरेंट होता है हब से, एज इट डायरेक्टली सेंड डेटा मेंट फॉर कंप्यूटर टू इट एंड नॉट टू द हब। हब में वो सबको सेंड कर देता था, बट स्विच में क्या करता है, केवल उसी को सेंड करेगा जिसके लिए वो मैसेज या पैकेट आया है। Switch are recorded address for all the computer within. Switch क्या करता है, हर एड्रेस मतलब हर कंप्यूटर के एड्रेस को रिकॉर्ड रखता है और जब मैसेज सेंड करना होता है तो उस एड्रेस को चेक करता है और उसी एड्रेस पे वो मैसेज को सेंड करता है। It analyzes the destination after receiving data, sends it to the desired destination directly. वो पहले डेस्टिनेशन को एनालाइज करता है और फिर उसको क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है, इन अ नेटवर्क कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय मेनी डिफरेंट यूजर सो एज टू प्रिवेंट डेटा थेफ्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी किससे बचाने के लिए होता है, हम अपने कंप्यूटर को उसमें डेटा से चोरी की वजह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी मेजर आर टू बी टेकन व्हिच इज वेयर नेटवर्क सिक्योरिटी कम टू प्ले। सिक्योरिटी मेजर तब लिए जाते हैं जब वहां पे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात होती है। पहला क्या है, वायरस। वायरस इंपैक्ट एंड इंटरफियर्स विद द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वायरस क्या करता है, वो इंपैक्ट और इंटरफियर्स, इंपैक्ट अपना डालता है जब उसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है और उसके डे टू डे वर्क को वो क्या करता है, ऑपरेशन जो होते हैं उसको इंटरफियर करता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट स्प्रेड इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे वो बढ़ता जाता है या फैलता जाता है। वायरस गेट अटैच्ड टू फाइल्स एंड व्हेन टू कॉपी इट फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और जब हम कोई भी किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या ईमेल भेजते हैं एक सिस्टम से एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पे, तो उसके साथ कंप्यूटर वायरस अटैच होके जा सकता है और जब वो पहुंचेगा जो वहां रिसीव होगा तो उसके कंप्यूटर में भी वो स्प्रेड हो जाएगा। द वायरस गेट ट्रांसफर टू अदर कंप्यूटर आल्सो, और इसी तरह वो दूसरे कंप्यूटर्स में अपनी प्लेसेस बनाते हैं। वॉर्म भी हमारा वायरस की तरह है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क टू सेंड अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर। वो क्या करते हैं, वॉर्म्स अपनी तरह की कई कॉपीज
नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं। वायरस कैन ओनली ट्रांसफर ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक कॉपिंग ऑफ फाइल, but worms transfer their copy on their own without requiring any human intervention. वायरस क्या होता है, अगर हम किसी को फाइल सेंड कर रहे हैं, किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, तभी वो दूसरी जगह ट्रेवल करेगा। बट वर्म क्या होता है, वो खुद को नेटवर्क के थ्रू सबको सेंड करता जाता है, उसमें मतलब हमारी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इस चीज को ऑपरेट करता है। The user doesn't even get to know that its computer is infected, और यूजर को ये पता नहीं होता है कि उसका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है या उसमें वायरस आ गया है। They reduce the network speed and can नेटवर्क स्पीड को कम कर देता है, और कभी-कभी ऐसा होता है नेटवर्क को भी ब्लॉक कर देता है। The next is Trojan horse. A Trojan horse look like a useful software for your computer, but it's not. Trojan horse ऐसा देखने में लगता है कि वो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा रियली में नहीं होता है। It harms the computer once it gets executed or installed. और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही हम उसको इंस्टॉल करते हैं या फिर जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। Trojan horse can be quite dangerous as they allow for unauthorized access to your computer, which means that someone can remotely control your computer, leading to loss of information and confidential data. Trojan horse हमारे लिए डेंजरस है, क्यों? क्योंकि जब ट्रोजन हॉर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है तो जो उसको बनाने वाला है, जो उसको सेंड करने वाला है, वो हमारे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है, और हमारा जो डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, उनको क्या कर सकता है, अपने पास कॉपी कर सकता है या उसका मिसयूज कर सकता है। डेटा शीट मींस people stealing data by hacking computer by breaking into the computer network. डेटा शीट क्या होता है, लोग हमारे डेटा शीट को हैक के थ्रू चुरा लेते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, हैक करते हैं। दिस कुड बी डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्क और टू स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। और ये इससे और क्या होता है, वो हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब करते हैं एज वेल एज और क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो कि फाइल्स हमारे या इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। हैकर कैन बी वाइट हैकर who hack computer to solve and fix problem and help individual and corporation in making their network more secure. वाइट हैकर क्या होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं। बट ब्लैक बॉक्स हैकर क्या होते हैं, ये इनको क्रैकर भी बोला जाता है, और ये क्या करते हैं, हमारे फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क की फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करते हैं, प्लस हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को चुरा लेते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी में पहला क्या है, एंटीवायरस। ऑल कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क शुड हैव एंटीवायरस ऑन देम। सारे कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से जुड़े हैं उनके में एंटीवायरस होना जरूरी है। एंटीवायरस प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम worms, trojan horse and all other malware। जो भी हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस हैं तो उससे क्या क्या सेव हो सकता, मतलब किस किस चीज को अवॉइड किया जा सकता है, worms, trojan horse और जितने भी एंटी वायरसेस या worms या malwares हैं उनको दूर रखा जा सकता है। It warns you when your computer infected, और ये जब भी कंप्यूटर में एंटर करेगा कोई भी worm, trojan horse या वायरस, तो ये हमें अलर्ट मैसेज देता है और उसको क्लीन अप करता है, डिलीट कर देता है या फिर डीएक्टिवेट कर देता है उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को। एंड द लास्ट टॉपिक इज फायरवॉल। A firewall protects the computer from any unauthorized access। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू हमारा ये फायरवॉल रोकता है, मतलब किसी को अंदर आने में।
Firewall can be introduced in the computer as a software or hardware. या तो हम सॉफ्टवेयर की तरह उसको यूज करते हैं या हार्डवेयर की तरह। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं और हार्डवेयर भी यूज होते हैं। कौन से? फायरवॉल। All the data that enter or leave the computer goes through firewall so that it can be examined and the computer can be protected. जो भी डेटा उस कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में आता है या जाता है तो वो फायरवॉल के थ्रू होता हुआ जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्ट रहता है। और फायरवॉल पहले उसको एग्जामिन करता है कि उसमें जो कोडिंग है, जो उसमें फाइल्स है, कहीं वो वायरस की तो नहीं। अगर वायरस की होती है तो वो एंट्री लेने नहीं देता या एग्जिट लेने नहीं देता है। This is all for today. So today we have learned about transmission media और wire transmission media, जिसमें कि कौन-कौन से है? स्टेट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, then wireless transmission media, infrared, microwave transmission, radio wave, Bluetooth, Wi-Fi, then network devices, NIC network interface card, modem, modulator, demodulator, hub and switch. Then network security, in which we have learned about virus, bombs and Trojan horse. And the last is computer security, in which we have learned about antivirus and firewall. This is all for today. Make a notes, learn it, watch the video at least 4 to 5 times so that it may get clear for you. If there also is any confusion, then please ask on the respective class WhatsApp group and make a note and complete it in your notebook. And you have to purchase the book, because in the next class we will discuss about the exercise and question answer of this chapter. Thank you.